السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر فاروق خالد۔ ناظرین، پوری دنیا کے اندر کرونا وائرس کی وبا نے ہلچل مچائی ہوئی ہے۔ پاکستان کے اندر حکومتی سطح سے اقدامات کیے جا رہے ہیں، لیکن اس وقت پرائیویٹ سیکٹر بھی اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ فیصل آباد کے اندر اس وقت میں فیصل آباد کے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل مجاہد ہاسپٹل کے اندر موجود ہوں، جہاں کرونا سے بچاؤ کے لیے یہ ایک آئسولیشن وارڈ کا قیام عمل میں آیا ہے، جو یقیناً ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اسی سلسلے کے اندر ہم یہ آئسولیشن وارڈ کیا ہے اور کس طرح یہ اپنا کام کرے گا اور یہ کب یہ فنکشنل ہوگا، ہم اس وقت مجاہد ہاسپٹل کے اندر موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ اس وقت ایم ایس مجاہد ہاسپٹل ڈاکٹر خالد فخر صاحب موجود ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس طرح فنکشنل ہوگا۔ جی خالد صاحب، یہ اپنا ایک تو بتائیں، یہ آئسولیشن وارڈ کتنے مریضوں پر مشتمل ہوگا اور یہ کیا کس طرح فنکشنل ہوگا؟ یہ مجاہد ہاسپٹل جو ہے یہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، اور جس طرح آپ نے عرض کیا کہ ہم نے یہاں جو ہے گورنمنٹ کی جو انسٹرکشن تھی سٹنگ گورنمنٹ آف پنجاب کی بھی، ہیلتھ کیئر کمیشن بھی اور ہماری جو ڈسٹرکٹ جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کے، ہم نے یہاں جو ہے 3 سٹیجز بنائی ہیں اپنے ہاسپٹل میں۔ پہلی جو سٹیج ہے ہماری، وہ کیس جو سسپیکٹڈ ہوں گے یہ اس وقت ہوگا، اس وقت ہمارا جو ہے جنرل ہاسپٹل غلام آباد جو ہے فوکل ہے ہاسپٹل، اور تمام وہیں اس کے ٹریٹمنٹ ہو رہی ہر چیز کے۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی موب جو ہے انفیکشن ہو جائے، یہ گورنمنٹ اس حساب سے جو ہے پلاننگ کر رہی ہے۔ اللہ نہ کرے اگر ایسی سچویشن ہوتی ہے تو ہم نے اپنے اس مجاہد ہاسپٹل میں 3 سٹیجز ہم نے بنائی ہیں۔ پہلی سٹیج ہماری وہ ہے جسے ہم آئسولیشن وارڈ کا نام لیا ہے کہہ لیں اسے، یا سٹیج 1 کہہ لیں۔ اس میں وہ پیشنٹ ہوں گے جو سسپیکٹڈ ہوں گے۔ یہ 6 بیڈ کا آئسولیشن وارڈ ہے، جس میں ہم نے کارڈک مانیٹر بھی رکھے ہیں، آکسیجن بھی ہے اور سکشن مشین بھی ہے، اور تمام جو ہے انسٹرومنٹ، یہاں ہم نے ایمرجنسی ٹرالی جو ہے میڈیسن وہ بھی ہے سارا کچھ، اور ہماری وہ کٹیں بھی ہیں جو ہمارا جو سٹاف جو جب یہاں کام کرے گا وہ ان کٹوں کو پہن کر جو ہے ان مریضوں کی وہ دیکھ بھال کر سکے گا۔ اس کے بعد جو کیسز جو ہیں ان کے جو رپورٹس جو سیمپل جائیں گے جب لیبارٹری میں، وہ جب ڈائگنوز ہو جائیں گے تو پھر ہم نے اس کے لیے اپنا ایک ایس یو بنایا ہے 3 بیڈ کا جو ہے، وہ بھی آپ نے دیکھ لیا، اس کی بھی آپ نے تصاویر بنا لی ہیں۔ پھر ہم اس کو وہاں اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے اس پیشنٹ کا۔ اللہ نہ کرے، دیکھیے یہ جو کرونا وائرس ہے اس میں 70% جو ہے اس میں کوئی سائن اور سمٹم انسان میں پیدا نہیں ہوتا، اگر اس کا ٹیسٹ کیا جائے تو وہ پازیٹیو ہوگا۔ اب اگلی جو ہے 13 سے 14% جو ہے مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں مائنر جو ہیں وہ کھانسی ہوگی، بخار ہوگا، چھینکیں ہوں گی، جسم درد ہوگا، یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ تقریباً 83-85% ہوگا۔ اس کی اگلا جو ہے تقریباً جو ہے کہہ لیں کہ 10 سے 12% وہ لوگ ہیں کہ جنہیں بخار بھی ہوگا، کھانسی بھی ہوگی، بلغم بھی ہوگی، جسم درد بھی ہوگا، اور ساتھ اس کو جو ہے تکلیف ہوگی، سانس لینے میں دشواری ہوگی۔ اور دوسرا بات کر رہا تھا کہ ہم نے اس کے بعد ہمارا جو آپ نے دیکھا آئسولیشن وارڈ جب وہ ڈائگنوز کیس ہو جائے گا وہاں اس کو ٹریٹ کریں گے۔ پھر خدا نہ خواستہ اگر اس میں ایسی کمپلیکیشن ڈیولپ ہو جاتی ہیں کہ اس کو سانس میں بہت زیادہ دشواری ہو جاتی ہے، تو ہم نے سامنے اس 6 بیڈ کا آئی سی یو بنایا ہے، اس میں ہم نے وینٹیلیٹر انسٹال کی ہیں۔ پھر ہم اس پیشنٹ کو وینٹیلیٹر پہ ڈال دیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگر وہ امپروو کر جاتا ہے تو اس کو واپس جو ہے اسی طرح واپس جو ہے دوسرے وارڈ میں ہم جو ہے شفٹ کر دیں گے۔ اور انشاءاللہ یہ وہ طریقہ ہے جو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے، اور اس لیے ہم نے اپنے اس مجاہد ہاسپٹل کو الحمدللہ، میرا یہ چیلنج تو نہیں کرنا چاہیے لیکن الحمدللہ ہیلتھ کمیشن کے آج ڈاکٹر صاحب آئے تھے، اقبال صاحب شاہ صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ فیصل آباد میں آپ کا پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر میں یہ 3 سٹیج بدلنا، یہ واحد ہاسپٹل ہے، ابھی اور کسی نے اس کو نہیں کیا۔ ناظرین، یہ پہلا آئسولیشن وارڈ ہے اس وقت مجاہد ہاسپٹل کا، آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین کے اوپر۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ اس وارڈ کا کیا مقصد ہے اور اس کے اندر کیا سٹیجز ہیں اور یہ مشینری کیا ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو ہے ہم یہ آئسولیشن وارڈ ہے، یہ وہ کیس ہیں جو کہ سسپیکٹڈ ہوں گے۔ میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ وہ سسپیکٹڈ کیس ہم نے یہ 6 بیڈ کا ہم نے بنایا، اس میں سارے ہم نے کارڈک مانیٹر لگائے ہیں، آکسیجن ہے، سکشن ہے، اور میڈیسن ساری جو ہے۔ اس کے بعد یہاں ان کے سیمپل لیے جائیں گے، سیمپل لے کے لیب میں جائیں گے، جب وہ کنفرم کیس ہو جائے گا پھر ہم سٹیج 2 میں سے لے جائیں گے، اس کا فل ٹریٹمنٹ ہم وہاں کریں گے جو آپ کو میں نے دکھایا۔ ناظرین، یہ پہلی سٹیج تھی، ہم اگلے وارڈ کے اندر جاتے ہیں کہ دوسری سٹیج کیا ہوگی۔
नाजरीन ये दूसरा वार्ड है इस वक्त HDU। डॉक्टर साहब ये कि कौन सा वार्ड है इसका क्या? देखिए जी, वो पहला आइसोलेशन वार्ड था जो उसमें कंफर्म केस हो जाएंगे, फिर हम इसको हाई डिपेंडेंसी यूनिट में ले आएंगे। ये 3 बेड का हमने बनाया, यहाँ उसका फुल ट्रीटमेंट होगा उस पेशेंट जिनका पॉजिटिव केस आएगा, यहाँ फुल ट्रीटमेंट होगा। अल्लाह यहाँ से इंशाल्लाह मोस्टली जो है वो इंशाल्लाह ठीक हो गए, घरों को चले जाएंगे। अगर खुदा न खास्ता कॉम्प्लिकेशन होती है कि वो कंसोलिडेशन होता है कि सांस में जो दुश्वारी आएगी, फिर उन पेशेंट को हम अंदर जो है तीसरी स्टेज है ICU, वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा। नाज़रीन ये देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर, ये मुख्तलिफ बॉक्सेस के अंदर इन बेड्स को तकसीम किया हुआ है। ये जो पेशेंट मॉनिटर है ये बड़ा लेटेस्ट है, और इसमें ये पल्स ऑक्सीमीटर भी है। ये हमें जो है हार्ट रेट, कार्डिक रेट, ECG और ब्लड में जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वो तमाम चीज़ें बतलाएगा। हमने इसमें जो है पेशेंट को टच किए बगैर इसके जो प्रोब हैं वो हम इसको सारा अटैच कर देंगे, तो वो तमाम जो है इंफॉर्मेशन हमें आनी शुरू हो जाएगी। नाज़रीन ये तीसरा मरला है, तीसरा वार्ड ICU। इसके अंदर डॉक्टर साहब क्या इधर सहूलत दे रहे हैं आप? देखिए जी, इस तरह मैंने अर्ज़ किया कि हमारे ये 3 स्टेजेस बनाई हैं। पहला हमने आइसोलेशन वार्ड बनाया था, दूसरा HU था, ये है ICU, इंटेंसिव केयर यूनिट। वो पेशेंट जिनके जो कम्प्लिकेशन जो है, मैंने बताया कि जो 3% जो पेशेंट है कम्प्लिकेशन में जा सकते हैं, ज़्यादा उनके जो है लंग्स जो है वो कंसोलिडेट हो जाते हैं, उनको सांस में बहुत ज़्यादा दुश्वारी आती है, उन पेशेंट को हम यहाँ ये 3 जो वेंटिलेटर लगाएंगे इसमें यहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा, और फिर उन्हें आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दिया जाएगा, सांस का ट्रीटमेंट किया जाएगा, और जो रिकवर हो जाएंगे इंशाल्लाह वहाँ से हम शिफ्ट कर दिया जाएंगे। और ये इसलिए ये एमरजेंसी में सबसे ज़्यादा जो है आखिर मोस्ट लेटेस्ट हमने जो है जो ये वेंटिलेटर है वो हमने यहाँ लगाए हैं, और ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि यहाँ एक प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट सेक्टर में जो है, देखिए पूरे पाकिस्तान में तकरीबन इस वक्त 2000 वेंटिलेटर हैं, और 800 चाइना से आ रहे हैं, मिल मिला के जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक माह तक ये 4000 की फिगर को टच करेंगे, और इसमें भी हमारा ये कंट्रीब्यूशन अल्हम्दुलिल्लाह मुजाहिद हॉस्पिटल का भी मौजूद होगा। नाज़रीन ये आपने देखा कि 3 मुख्तलिफ फेजेस के अंदर इंतहाई जदीद सहूलियात से रास्ता मुजाहिद हॉस्पिटल के अंदर कोरोना से निपटने के लिए इंतज़ाम किया गया है। नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ सदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मुजाहिद हॉस्पिटल शेख मुश्ताक साहब मौजूद हैं। शेख साहब क्या इक़दामात कर रहे हैं इब्तदाई तौर पर इस कोरोना से बचाव के लिए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। अल्हम्दुलिल्लाह मुजाहिद हॉस्पिटल और मुजाहिद वेलफेयर काउंसिल के तहत हम इस हॉस्पिटल में पंजाब हेल्थ केयर की तमाम असूलों के मुताबिक, लोगों की ज़रूरियात के मुताबिक उनकी खिदमत कर रहे हैं, और हर तरह आने वाले मरीज़ की जितनी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनको पूरा कर रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है यहाँ से लोगों को बासहूलत इलाज की हर तरह की फैसिलिटी मुयस्सर है। सफाई सुथराई का इंतज़ाम रखें, अगर नमाज बाकायदगी से पढ़ें और बावज़ू रहने की कोशिश करें तो इंशाअल्लाह ये बीमारी अल्लाह के फजल व करम से हमसे वैसे ही दूर रहेगी और हम इससे बेहतर तरीके से बचाव कर सकें। नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मुजाहिद हॉस्पिटल मियाँ अजमल हुसैन बदर एडवोकेट हाई कोर्ट मौजूद हैं। अजमल साहब आप किस तरह इसको मैनेज कर रहे हैं, इस पूरे सिस्टम को? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आपका मशकूर हूँ उमर फ़ारूक साहब कि आप मुजाहिद हॉस्पिटल एक ऐसा इदारा फैसलाबाद के बिल्कुल दिल के अंदर मदीना टाउन में मौजूद है। ये मुजाहिद वेलफेयर काउंसिल का एक यूनिट है। मुजाहिद वेलफेयर काउंसिल बुनियादी तौर पर एक NGO है जो फैसलाबाद के अहले खैर मिल के इंसानों की रहनुमाई, तिबी मैदान में रहनुमाई के लिए बनाया गया है, और यहाँ लोगों को इंतहाई अर्ज़ा कीमत के ऊपर हर मेडिकल के फील्ड के अंदर तकरीबन इंतहाई अर्ज़ा कीमत के ऊपर आम पेशेंट्स को भी ट्रीटमेंट दी जाती है और अहले खैर के तावन से दी जाती है। और इसके अलावा जितने भी डिज़र्विंग पेशेंट होते हैं, डिज़र्विंग पेशेंट को 100% हॉस्पिटल अहले खैर के तावन से ट्रीटमेंट मुहैया करता है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की मुहैया करता है। इसके अंदर OPD से लेकर हैपा फिल्टर सर्जरी, जो कि फैसलाबाद के अंदर पहला प्राइवेट सेक्टर में हॉस्पिटल है जिसकी सर्जरी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की हैपा फिल्टर ऑपरेशन थिएटर है, वहाँ होती है। तो अब ये बात है कि गवर्नमेंट इन हालात के अंदर
जो कोरोना की वजह से पैदा हुए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक मुजाहिद हॉस्पिटल ने भी हेल्थ केयर कमीशन के तावन से अपने कदम आगे बढ़ाए हैं और अपने आप को पाकिस्तानी कौम के लिए इस मुश्किल वक्त के अंदर पेश कर दिया है। और इसके लिए फैसलाबाद प्राइवेट सेक्टर के अंदर और वेलफेयर इदारों के अंदर ये पहला हॉस्पिटल है जिसके अंदर करोड़ों रुपए की मालियत से जदीद मशीनरी से लेस आइसोलेशन सेंटर, जिसके अंदर आपने देखा, हमारे एमएस साहब ने आपको ब्रीफ किया, 3 स्टेजेस के अंदर पेशेंट्स की ट्रीटमेंट कोरोना के हवाले से की जाएगी। और वो मुकम्मल, ये मैं नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ, अपने शहरियों को ये बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर पूरा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तमाम किट से लेकर, टेस्ट से लेकर और जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, वेंटिलेटर से लेकर हर तरह की स्टाफ के तहफ़्फ़ुज़ से डॉक्टर्स और अमले को मुकम्मल किट्स के साथ जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके साथ ट्रीट किया जाएगा। और इंशाल्लाह इसके ऊपर जो भी अखराजात आएंगे वो पेशेंट्स के लिए 100% फ्री होंगे। और मेरी इस मामले के अंदर अहले खैर से, फैसलाबाद के अहले खैर से भरपूर, ये पहले भी मैं समझता हूँ अगर मैं शुक्र अदा ना करूँ तो करोड़ रुपए के अखराजात हॉस्पिटल के होते हैं, वो फैसलाबाद के मुखय्यर हजरात इसको उठाते हैं। अब भी मैं स्पेशली इन हालात के अंदर मुखय्यर हजरात से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये मुजाहिद हॉस्पिटल फैसलाबाद के शहरियों का इदारा है, ये इन शहरियों के लिए बना है और इन शहरियों की मदद के लिए तिबी मैदान के अंदर हर तरह की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की ट्रीटमेंट के लिए बना है। अब भी हम इस मुश्किल वक्त के अंदर अपने आप को पेश किया है। आपसे ये गुजारिश है कि अपने सदकात, ज़कात, इसके अलावा जो भी आपके पास इस वक्त वसाइल मौजूद हैं, मैं ये समझता हूँ और हमारी मैनेजमेंट ये समझती है कि इस वक्त जो भी आप मुजाहिद हॉस्पिटल को अपना सरमाया फराहम करेंगे, इसके नतीजे में इस फैसलाबाद के शहरी जो हैं इंशाअल्लाह उनका इलाज भी होगा और उसके नतीजे में इस दुनिया में भी और इंशाअल्लाह इस दुनिया के बाद आखिरत के अंदर आप बहुत बड़े अजर के मुस्तहिक होंगे। नाज़रीन, ये अजमल हुसैन बदर साहब आपसे अपील कर रहे थे और ये स्क्रीन के ऊपर आप मुजाहिद हॉस्पिटल का बैंक अकाउंट देख रहे हैं। तो मुखय्यर हजरात से अजमल साहब ये अपील कर रहे थे, चूँकि ये बिल्कुल 100% फ्री इधर इलाज होगा कोरोना के लिए भी और दूसरे मैदान में भी ये बहुत रिलीफ दे रहे हैं। तो आपके स्क्रीन के ऊपर अकाउंट नंबर है, तमाम हजरात दिल खोल के मुजाहिद हॉस्पिटल के साथ ताउन करें। अजमल साहब, कोई आखिरी पैगाम आप अगर देना चाहें तो। मैं अपने शहरियों को ये बताना चाहता हूँ कि इस इदारे का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है और इसका जनरल काउंसिल, ये तमाम लोग अपना वक्त, अपना माल 100% वॉलंटियर हैं। ये यहाँ से बेनिफिशरी नहीं हैं, ये ख़ुद भी अपना माल, सदकात, ज़कात और अपना वक्त जो है वो सभी फ़ी सबीलिल्लाह इंसानियत की ट्रीटमेंट के लिए देते हैं। तो मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि जिस तरह ये हमारी NGOs के मेंबरान जो हैं तावन करते हैं, वो वक्त देते हैं, ये इदारा आप ही का है, आप भी इसके लिए वक्त दें, इसके लिए आपके पास वसाइल है वो दें, जो आपके पास सजेशंस हैं वो दें, ताकि इस इदारे को वाक़ई शहरियों के लिए और फ़ायदा मंद और सूदमंद बनाया जा सके। और आखिर में फिर मैं मशकूर भी हूँ पूरी आवाम का और आपसे फिर दरख्वास्त गुजार हूँ कि इस वक्त हॉस्पिटल को बहुत बड़े फ़ंड्स की ज़रूरत है ताकि ये हॉस्पिटल के अंदर आने वाला कोई गरीब पेशेंट मायूस ना जाए और उसका इलाज जारी रखा जा सके। नाज़रीन, आपने देखा कि इंटरनेशनल सहूलियात स्टैंडर्ड्स के मुताबिक सहूलियात से लबरेज ये हॉस्पिटल है जो फैसलाबाद के लोगों के लिए अरसा दराज से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है। तो इसके साथ माली ताउन करें और इसके साथ अपने मेज़बान उमर फ़ारूक खालिद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।